we are going to learn the different placement technique, and we are going to do the different color combination. Okay, so what I have done, before putting the placement, I have already prepped my dummy with the global hair color, and the global hair color which I have used for my dummy is 5.18 near the roots, and for lens I have used 7.18 with 30 volume from Innova family. You can play with 20 and 30 volume, definitely according to the hair natural base. If it is lighter, then definitely you can do with 20 volume, and if it is darker, then with the 30 volume. And again according to the needs of the client. Okay, so the after global, what we will be doing, we'll be starting doing the placement. So for the placement, this is my sectioning pattern. I hope everybody can see the sectioning pattern. It's very simple. It's classic 2 from the back, and from the front I have isolated a triangle for the money piece for the face framing, and the sides are the 2 sections. And further what I'm going to do, I'm going to divide this section also in the different 2 sections. So in the front it is going to be all together 5 sections. इससे हमको क्या मिलेगा? We are going to get more blended effect, more natural effect, which is the base, which is the DNA of the French balayage. French balayage मतलब क्या होता है? The most seamless and the natural looking hair. Okay, so अभी मैं placement start करूँगी. So let's begin with the placement. Are you okay with here? I'll be playing with weaves and slices. Okay, but ये जो weaves होगा ये classic weaving नहीं होगा. It is going to be the circular weaving. मैं आपको करके दिखाऊंगी. Okay, but first section will be the diagonal back slice section. Okay, so that's my first diagonal back. I hope everybody can see. No, ma'am. No, who cannot see. थोड़ा सा ऐसे यहाँ पे This is better. yes. So a thinner slice. ज़्यादा थिक सेक्शंस में आपको प्लेसमेंट नहीं करना है, अदरवाइज यू विल एंड अप बाय गेटिंग द चंक्स. ओके, एंड आपका जो नेचुरल लुकिंग हेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं आपको मिलेगा फाइनल रिजल्ट. ओके, सो द थिनर स्लाइस, एंड अगेन ब्रश में प्रोडक्ट को ओवरलोड नहीं करना है, जस्ट यू नो द मिनिमम अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट विच यू कैन फर्दर. And I will start placing the product on the section. Okay, so जब आप प्रोडक्ट प्लेस करोगे और जब आप स्लाइसिंग में बालियाज प्लेस करते हो और आपको ब्लेंडेड इफेक्ट चाहिए, सीमलेस इफेक्ट चाहिए, तो हेयर को हमेशा आप थ्री जोन्स में क्लासीफाई करोगे. जोन ए द टॉप ऑफ द हेयर, जोन बी एंड जोन सी द एंड्स. ओके, आई विल स्टार्ट प्लेसिंग द कलर, द प्रोडक्ट from zone B, and I will start moving upwards. Okay, so this is how I am going to blend. ये जो आपका डायरेक्शन होगा ये नेचुरल डायरेक्शन होगा, जो सेक्शन का डायरेक्शन है वैसे आप इसको प्लेस करोगे, ओवर डायरेक्ट नहीं करोगे यहाँ पे. एंड स्लोली आपको ऊपर जाना है, and you will start blending the product with the less product on the first section. क्योंकि फर्स्ट सेक्शन में ही अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लोगे तो क्या होगा, जैसे कि सर ने भी एक्सप्लेन किया है, ओवर लाइटनिंग होगा. सो पहला जो मेरा सेक्शन है उसमें मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लूँगी, एंड मैं सी जोन में बिल्कुल अभी नहीं जाऊँगी जब तक till the time I am not happy with the blending of my top. Okay, once I am happy with the blending of my top, I can place the product at the bottom. Blend.
तो यहाँ पे हम सरफेस पेंटिंग ही करेंगे, फुल सेचुरेशन नहीं करेंगे दोनों साइड. Once I am done with my blending, I will take the foil and saturate the ends with the product. आप यहाँ पे बालियाज बोर्ड का भी यूज़ कर सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द सैलून में मैंने ऑब्जर्व किया है कि बोर्ड्स अवेलेबल नहीं होते हैं, तो आप फॉइल के साथ भी कर सकते हैं. लेट्स डू दिस विद द फॉइल. मैं आपको बोर्ड पे के ऊपर भी करके दिखाऊंगी नेक्स्ट सेक्शन. I will place the foil at the hole and the bottom hole. Let's move to the second section. यहाँ पे सेकेंड सेक्शन होगा अगेन डायगोनल बैक. एंड यहाँ पे आप एक थिन स्लाइस भी आइसोलेट कर सकते हो, या फिर आप इसमें से डायरेक्ट भी सर्कुलर वीविंग ले सकते हो. इट इज टोटली अप टू यू. सो हियर आई एम जस्ट टेकिंग द सर्कुलर वीविंग, बट इट विल नॉट बी फ्रॉम हियर, अदरवाइज इट विल एंड अप बाय लुकिंग लाइक अ क्लासिक हाइलाइट्स. ओके, सो लेट्स टेक फ्रॉम हियर and move the tail comb in the circular way. It should look like the merged weaving, okay, the baby lights. It's a kind of baby lights, the micro weaves. Okay, so something like this, and again placement will be in the same way. यहाँ पे मैं एक स्लाइस एक वीविंग में क्यों कर रही हूँ प्लेसमेंट? एनी आइडिया, एनी गेसेस क्यों ऐसा हो रहा है यहाँ पे? मैं सिर्फ स्लाइस में भी कर सकती हूँ ना. Guys, it can be wrong, absolutely no problem. Okay? Yeah. If you need to learn something, you must accept the fact that we make mistakes. ओके, सो स्लाइस एंड वीविंग जब आप प्लेस करते हो ना, तो क्या होता है, आपको ज़्यादा नेचुरल इफेक्ट मिलता है. ठीक है, क्योंकि स्लाइस में प्रोडक्ट ज़्यादा प्लेस होता है, वीविंग में कम प्लेस होता है. तो ये सॉफ्ट इफेक्ट के लिए हम बीच में क्या कर रहे हैं, हम वीविंग का प्लेसमेंट कर रहे हैं. ओके, सो इट इज़ गोइंग टू गिव यू मच मोर सॉफ्टर इफेक्ट. Okay, so to create the most softer, the most seamless, and the most seamless, actually the seamless effect, we are going to place the sections like this, the products like this. Yeah, so ये आपके फ्रेंच बालियाज को और ज़्यादा seamless बनाता है अगर आप ये टेक्निक यूज करते हो. और मोका में वैसे भी हमको बहुत ज़्यादा लाइट कलर नहीं चाहिए होता है. इट इज़ मोस्टली इट इज द मोका कॉन्सेप्ट इज मेड विच इज़ द मोस्ट सुइटेबल कलर फॉर द इंडियन स्किन टोन, है ना. तो उस हिसाब से अगर आप प्लेसमेंट थोड़ा और ज़्यादा नेचुरल करोगे तो वो आपके कलर कॉन्सेप्ट को भी सूट करेगा. सो वंस आई एम डन विद द ब्लेंडिंग, अगेन मैं क्या करूँगी, फॉइल के हेल्प से एंड्स को सेचुरेट करूंगी. सो बैक पे आपको यही फॉलो करना है, द स्लाइसिंग एंड द माइक्रो वीव बालियाज. You need to avoid the spots. You need to avoid the over saturation of the product at one place. जहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि spots है, आप क्या करोगे, ब्रश की हेल्प से आप ब्लेंड कर सकते हो. स्पॉट्स हो सकते हैं, है ना. मेरा भी कहीं कहीं पे जहाँ पे स्पॉट्स मुझे दिख रहा है, मैं क्या कर रही हूँ, आई एम ऑब्जर्विंग एंड देन आई एम ब्लेंडिंग, ऑब्जर्विंग एंड ब्लेंडिंग. दैट इज व्हाट वी नीड टू डू.
doing the color. Metal DX. What are the most 3 benefits of Metal DX? क्या 3 बेनिफिट होता है? फर्स्ट बेनिफिट इज द 87% लेस ब्रेकेज, है ना. तो जब मेटल डीएक्स जब आप हेयर पे अप्लाई करते हो तो आपका ब्रेकेज रिडक्शन होता है. सेकेंड, यू गेट द ब्यूटीफुल शाइन ऑन द हेयर एंड यू गेट द मोस्ट इवन लुकिंग कलर. सो मेटल डीएक्स शुड बी द मस्ट before any coloration you do in the salon, whether it is highlights or it is balayage or it is a global color or it is just a glossing, the French glossing for the client. Yeah. So back I will continue like this. यहाँ पे टॉप पे जब आप पहुँचोगे ना तो आप क्या करोगे, आपको यहाँ पे ना एक ट्राइंगल मिलेगा. ट्राइंगल में आप वीव एंड स्लाइस नहीं प्लेस करके आप सिर्फ माइक्रो वीव भी प्लेस कर सकते हो to make it even more softer and more natural. So that is what you can try in today's practical if you are creating this look. So let's talk about the front now. फ्रंट में मैं क्या करूंगी, जैसा कि मैंने कहा ये साइड, मेरा जो साइड का जो सेक्शन है इसको मैं फर्दर 2 सेक्शन में क्लासिफाई करूंगी. ट्राइंगल तो मेरा मनी पीस के लिए है ही. So here what I am going to do, I am going to continue the same, the slicing and the weaving balayage, okay. But यहाँ पे बॉटम सेक्शन जो मेरा होगा ना उसका प्लेसमेंट टॉप से होगा और ये टॉप में मैंने जो ट्राइंगल आइसोलेट किया है उसका प्लेसमेंट मैं थोड़े नीचे से करूँगी. मतलब बिल्कुल रूट के क्लोज नहीं करना है. मे बी यू कैन लीव 1 to 1 inches the roots area and then you can start doing the placement. इससे क्या होगा, you get the blend of the lighter pieces at the bottom and slight darker pieces on the top, which blends beautifully and which gives you the most softer effect when it comes to the final result. So let's do few sections in the front. Again diagonal back. So I'll continue doing the same what I have done at the back. A thin slice. This much can be the slice. I hope everybody can see, not the thick at all. And again, very, very less product on the brush. I'm going to use the board for the end saturation. Just 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Guys, I'm pretty much towards the last part of my application. So आप देखा कितना जल्दी हर सेक्शन को कंप्लीट कर रहा है. ओके तो एक सेक्शन के ऊपर कितना मिनट आइडियली स्पेंड करना चाहिए? 3 minutes. Only 3 minutes. Yeah, 1 minute. So, become the James Bond for the day. Not 3 minutes, okay? 3 minute imagine करो 30 pieces डालना तो क्या होने वाला है? कल जाओगे? Just 1 minute, guys. So try to set the clock and do it every second. You improve on that technique, you can come to 2 minutes, and gradually you will end up doing in 1 minute. Okay, that's it. Because you have a global, you have a balayage, and then you have a toning. Okay, so you can't take forever. वरना आपको पूरा सैलून का कलर का बिल एक ही क्लाइंट को देना पड़ेगा. Okay. So, एंड आज मुझे कोई भी ऐसा दिखना नहीं चाहिए पूरा हेड का प्रीलाइनर एक ही टाइम में मिक्स करके स्टार्ट करता है. आई वांट यू टू मिक्स
हाफ ऑफ व्हाट यू नीड, दैट्स इट। क्योंकि एवरी पासिंग सेकेंड में प्रोडक्ट का स्ट्रेंथ कम होते ही जाएगा। ओके, जैसा आप लास्ट सेक्शन में आएगा तब तक आपका प्रोडक्ट का ऑलमोस्ट लाइफ उधर खत्म होता है। सो यू डोंट गेट द लिफ्ट। तो आपको ऑरेंजी लिफ्ट ऊपर मिलेगा और एकदम ब्राइट लिफ्ट नीचे मिलेगा। अगर आप क्वार्टर लेगा तो भी सही, 2 बोल ले लो, उसमें क्वार्टर क्वांटिटी प्रोडक्ट डाल के रखो, जब चाहिए तब मिक्स करो। ठीक है, तो सब एक ही, अगर टाइम के हिसाब से टाइम के ऊपर आपको टेंशन है तो दोनों बाउल में प्रोडक्ट डाल के रखो, तो मगर एक ही टाइम में पूरा मिक्स करके नहीं रखो। ओके, सो सिंपल, आई एम जस्ट गोना गो थ्रू दिस अगेन as my application is going to come to an end. Okay, Nimisha, can I? So again, what I'm gonna do, I'm gonna over direct my section towards a face to get a sharper angle. Okay, and जिधर मुझे finish करना है उसका थोड़ा नीचे से मैं, it's a very fine section, so you don't see a very clear application on this, but the effect can be same. And then you gently blend it, brushing with your little finger. Everybody has got little finger? Yes. अभी बालियाश बोर्ड बोलेगा तो सबके पास नहीं है, मगर लिटिल फिंगर कर सकता है। और कितना लोग करता है ऐसा हाथ से ब्लेंडिंग? Not very. Yeah. It's one of the easiest way. Use your body as a tool. ठीक है? And जब ब्लेंडिंग करते हो तब कभी भी लाइन से स्टार्ट नहीं करने का, 1 इंच नीचे से स्टार्ट करने का है, क्योंकि वो ऊपर जो प्लेन हेयर है दैट इज योर कनेक्टिंग एरिया। अगर उधर से स्टार्ट करेगा तो कनेक्टिंग जाएगा उसके ऊपर, तो आपको क्या मिलेगा? मिड बैंड मिलेगा। ओके, So you all have seen these 2 sections. इसका प्लेसमेंट मैंने कहाँ से किया है? नियर द रूट्स, मे बी लीविंग 1 to 1.5 centimeter. So in the first triangle, I'll be placing almost 3 to 4 foils, not so many. Otherwise, you will end up by seeing only the lighter pieces. Okay, so not so many foils. And in the top triangle, you will be placing 3 to 4 foils. Again, depends on the density of the hair. So when I reach to this top section, I will again play with my slices and weaving. You can also place the micro weaving if you want even more softer effect. But what we have done for our model, which is there in the presentation, is 1 weave and 1 slice, micro weave and micro slice placement. यहाँ पे भी आपको diagonal बैक सेक्शन में ही करना है प्लेसमेंट। I'll start with the slice here. And my placement will not go beyond this. So if you observe, here I am just placing a minimum amount of the product just to get that blend. But it needs to start from somewhere over here. Okay, at the top, very fine section, not thick section guys. ठीक है, so ये मेरा सेंटर पार्टिंग में अभी आ गया। इधर जो सेक्शन है, अगर आपको और सॉफ्टनेस क्रिएट करना है, यू कैन डू बैक कोमिंग, नो प्रॉब्लम। ओके, और इफ यू वांट अ लॉट ऑफ सॉफ्टनेस, डू योर वीविंग, ठीक है, एंड प्लेस इट, नो प्रॉब्लम। बट ऑन द टॉप, बेयर में एंड ये जो सेक्शन में जब आप अप्लाई करते हो, एकदम रूट के सामने नहीं जाने का है। ओके, हेड का जो कर्व है उसके नीचे आपका बालियाश का हाईएस्ट पॉइंट है, वो फिनिश होने का। व्हाई? अगर आप एकदम रूट के सामने जाएगा तो कैसा दिखेगा? आपको हाईलाइट जैसा दिखेगा। ठीक है,
So this way I'm going to complete my this section. Yeah. And once I'll be done with all the side and the back section, at the end I'm going to start with my money piece. So here I'm going to place only the micro weaves to frame the face and to get the softer effect on the face. So nowadays face contouring is pretty much in the trend. People like to have some some lighter pieces in the at the end in the front, but not too much too prominent. Yeah, so it has to be softly blended and it has to be the section not too thick section basically. That's the reason I'm going to take the micro weave in the front. So let me show you maybe one or two sections. So I can start doing the placement from here, right from here, from the hairline. So for that I need to isolate a slice first. Again the roots weaving, but very very close and very very fine. अगर आपने फाइन एंड क्लोज वीविंग नहीं लिया, माइक्रो वीविंग नहीं लिया, तो वो बिल्कुल स्ट्राइप्स की तरह दिखेगा, which is not the French balayage at all. So the final effect has to be somewhat like this, and I start doing the placement. टॉप में आप देख रहे हो मैं बहुत मिनिमम प्रोडक्ट लगा रही हूँ. ends can be more. So whoever doing money piece at the front, I don't know if Nimisha already spoken about it. आपको brick work में लगाने का है. Okay? So एक ही line आप इसके बारे में डिस्कस किया? No, Oh, you are. You can continue. Yes. क्योंकि ये जो फ्रंट जो सेक्शन है, the entire look actually starts from there and then go behind, right? So अगर आप उधर माइक्रोवीव किया, उसका स्ट्रेट ऑपोजिट आपने नेक्स्ट माइक्रोवीव का पीस लिया, उसके ऊपर सेम लाइन में तीसरा वाला आ गया, so then the whole thing will look like one single chunk of microweave. तो क्या होगा? आपका पूरा ज्यादा लाइट का अट्रैक्शन किधर जाएगा? वो हेवी पीस में जाएगा. So आपको क्या करने का है? तो नीचे जो माइक्रोवेव कर रहा है वेरी सॉफ्टली, उसका ऊपर जब सेक्शन लेता है, उसके बीच में जो हेयर छोड़ दिया ना, उस जगह से आपको स्टार्ट करके वीव करना है. तो एवरीथिंग विल लुक वेरी वेरी सॉफ्टर एंड इट विल लुक लाइक योर टू फिंगर्स कनेक्टेड टुगेदर. ओके, मैं अभी दिखाता हूँ इधर. ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि नॉर्मली मनी पीस कब करता है? सबसे लास्ट में करता है. तब तक हमारा काफी बहुत एनर्जी स्पेंड हो गया, तो देन वी आर इन अ हरी टू फिनिश इट. तो हम उतना ध्यान नहीं देता उधर, और आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला जगह है पूरा एनर्जी सेव करके रखो. जैसा जल्दी एप्लीकेशन खत्म करके व्हेन यू कम देयर, यू शुड हैव एनफ एनर्जी टू एक्चुअली थिंक अबाउट हाउ दिस इज गोइंग टू फॉल. ओके, सो कुछ लोगों का साइड हेयरलाइन होता है, वो लोग एकदम सेंटर में नहीं डालते हैं. अगर आप उसको सेंटर ऐसा ट्रायंगल बना के उधर डालेगा तो क्या होगा? एक साइड में पूरा लाइट पीसेस रहेगा, एक साइड में प्लेन रहेगा. आपको क्या करने का है? जैसा उसको नेचुरल पार्टिंग है उसके हिसाब से आपको ट्रायंगल लेके रखने का. देन इट फोल्ड्स लाइक अ मनी पीस फॉर हर. ओके, अदरवाइज इट्स अ मनी पीस फॉर समबडी एल्स व्हिच यू पुट ओवर देयर. क्या समझ में आ रहा है मेरा हिंदी? नहीं आ रहा तो करके देखो तो समझ में आएगा.